Namaste, welcome. So, this is the series where we are targeting the entrance examinations. So, Ayurveda having a vast syllabus with innumerable references from various Samhita and also a lot of syllabus portion from the contemporary medicine. A student faces difficulty especially while preparing for examination. कई बार जो है स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्या है मैटर लेकिन वो कहीं ना कहीं एमसीक्यू सॉल्व करने में सक्षम नहीं होते. तो वहाँ पर स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हर पोटेंशियल or get that smart trick to solve the MCQ. So in this series, we are going to have in-depth analysis of chapter-wise possibilities related to multiple choice questions. At the same time, we'll study all levels of questions. मतलब कुछ अध्यायों में आपको बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ तो बियॉन्ड हाई लेवल जैसे कमेंट्रीज वगैरह है या रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है वो भी मिल सकते हैं. So in this series, we are going to target all those levels. So today we are going to have one of those chapters and this will be from Charaka Samhita. So this has been termed as Vishikanu Pravesha because this is probably one of the stepping stone before the actual clinical practice or the professional field for any of the BMS graduate. So many exams, any of these exams where the syllabus will be same, that is in relation to Samhita, will be beneficial. So this section is about Samhita. So this today's session is about the Nidana Sthana first chapter from Charaka Samhita, which is Jvara Nidana. So this chapter is one of the most highly sought after chapter क्योंकि इसमें मैटर तो है ही है क्योंकि आयुर्वेद के कॉलेज में आप पढ़ते बहुत सारे टीचर से सुने होंगे कि ज्वारा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन आयुर्वेदा. So this applies for both the cases, that is your lengthy questions in final exams and at the same time MCQ based questions. So this chapter can have so many types of question. आप देख सकते हैं यहाँ पर it can have synonyms based question, numericals based question, enumeration, namani. Then this chapter is having specifically the introduction to Nidana Panchaka, then actual Jwara as such, the Nidana Panchaka related to that. Then as I said, some higher level questions like reference based question, Udaharana based questions where Acharya uses Nidarshana Tantra Yukti, and then also certain Chakrapani Tika related question. So many variants of questions are possible. We are going to analyze all of them. मतलब हम इनमें से कोई एक भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक को एनालाइज करेंगे. इस सेशन के बाद एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्वर निदानम इट विल बी एट योर फिंगर टिप्स. आपको दोबारा कन्फ्यूजन आएगा ही नहीं. सो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग दी एज सच MCQ बेस्ड क्वेश्चन, अ स्टूडेंट शुड हैव अ प्रॉपर आइडिया अबाउट दैट चैप्टर. अभी ज्वर निदान का अध्याय है तो इसमें क्या क्या मैटर है, आचार्य चरक ने क्या क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिए हुए हैं. व्हाट आर द एक्सप्लेनेशंस गिवन बाय आचार्य चरक. सो द चैप्टर स्टार्ट्स विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सामान्य निदान फॉर अ व्याधि. सर्टेन पर्याय आर मेंशन्ड, निदान related to nidan. Then the vyadhi upalabdhi karana, which is nothing but nidana panchaka. Then again the lakshana and then paryaya of the same. What is vyadhi, what are the paryaya, and then individual nidana, what is the meaning of nidana, what are the paryaya, purva rupa, rupa paryaya, etc. And then an actual chapter of jwara starts, that is the ashta vishesha jwara lakshana with samprapti, and then सामान्य ज्वर पूर्व रूप, and ultimately chapter ends with certain चिकित्सा सिद्धांत related to जीर्ण ज्वर and सर्पी प्रयोग. तो कुल मिलाकर एक नटशल में ज्वर निदान में निदान पंचक है एंड ज्वर का भी निदान पंचक है. इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू ज्वर निदान, इवन द बेसिक्स ऑफ निदान पंचक इज देयर. तो ये आपको पहले पता होना चाहिए. सो नाउ कमिंग बैक टू दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अभी आपके दिमाग में सेट हो गया कि हमें इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. So let us see one by one. The first one, synonyms based question, paryayani. So paryaya are famously written as anarthantaram. Anarthantaram refers to paryayani. That is synonyms. जैसे एतु शब्द है, it can be either called as nimitta, ayatana, karta, karanam, pratyaya, samutthana and also nidana. Similarly vyadhi जो शब्द है, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वरा, विकार, रोग, वैसे ही लक्षण के लिए भी लंगम, लिंगम, आकृति ही, लक्षणम, चिन्हम, संस्थानम, व्यंजनम, रूपम.
तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। सो इनको कैसे याद करना है? इन दिस केस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी हैविंग द मेमोरी ऑफ श्लोका। अगर आप में से कई लोग इस तरह की श्लोक को याद किए, जैसे हेतु हेतुर्निमित्तम आयतनम कर्ता कारणम, सो अगर श्लोक ही याद है या सूत्र याद है, देन यू वोंट हैव एनी कंफ्यूजन। उसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, बिकॉज एज सुन एज यू सी द क्वेश्चन, your mind will automatically think from that point of view. Even if you forget, you can recollect by reciting the shloka. One methodology is that. Second methodology क्या है? मान लीजिए आपको श्लोक पता नहीं है, अभी के लिए हम मानते हैं you don't know the shloka and the question is already there in the paper. Now you are supposed to solve this. तो इनमें से कई सारे टर्मिनोलॉजीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से हेतु, यू विल नॉट फॉरगेट दैट इट इज निदाना. निमित्त इज ऑल्सो कॉज, सो निदाना. कर्ता, व्याधि के लिए कर्ता कौन है? अगेन द डूअर फॉर द व्याधि, निदाना. कारण, अगेन द कॉज. सो आयतनम इज वन न्यू वर्ड. आयतनम, आयत, यत धातु है. सो आयतन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम आंग उपसर्ग यत धातु. यत, यत्न, repeatedly doing something, that is hetu, nidana, repeatedly consuming something. There is another term called pratyaya. pratyay शब्द है. प्रत्यय जो है क्रेडिट देने की बात है, क्रेडिट. दिस क्रेडिट गोज टू दिस. जैसे प्रत्ययभूतः, प्रत्ययभूतः मीन्स द वन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर, उस अर्थ में होता है. सो यहां पर आप देखिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर गेटिंग द व्याधि. व्याधि के लिए जो कारण है वो हेतु है. सो ये पूरा जो हेतु के पर्याय है, आई थिंक आयतन एंड प्रत्यय आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स डायरेक्ट मीनिंग. तो ये तो आप याद कर सकते हैं. वन इज आयतन, अदर वन इज प्रत्यय. द कॉमन वर्ड मिस्टेक व्हाट स्टूडेंट मेक इज बिटवीन दिस समुत्थान एंड संस्थान. यू सी दैट colored words there. In case of hetu, there is a paryaya called as samuttana, whereas in case of lakshana, the last one lingam akritim, वहां पर एक शब्द है संस्थान. So usually students make mistake here. So the examiner will target the student from this particular word. One is samuttana, other one is sansthan. तो अगर आप इसको देखेंगे, समुत्थान, समुत्थान, उत्थान इज टू अरेज, टू कॉज, उत्थान. दूसरे शब्द जो है संस्थान, स्थान मीन्स टू स्टे, स्था धातु है, टू स्टे के अर्थ में. आप शब्द में जाइए, संस्थान, समुत्थान, उत्थान. उत्थान इज टू राइज, राइट, कॉज. तो शब्द से ही ये क्लियर हो रहा है. इसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटम फिजिक्स है ही नहीं इसमें, मतलब इतना ज़्यादा न्यूमोनिक की भी ज़रूरत नहीं है. समुत्थान, उत्थान मीन्स टू कॉज, टू रेज. संस्थान, टू स्टे. somebody is having some skin disease, that is संस्थान, that stays there. and what is causing that? क्या किसके वजह से अराइजन हो गया, मतलब किसके वजह से हुआ है? उत्थान, समुत्थान, संस्थान. इससे आपका वो जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाता है. So please keep that particular difference in mind. One is samuttana, which is hetu, samsthana, which is lakshana. 2-3 बार अगर आप सोचेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा. मीन्स नथिंग इज देयर टू लाइक बाय हार्ट और समथिंग लाइक दैट. लर्निंग बाय हार्ट, उसमें कोई इशू नहीं है. इसमें क्या है एडवांटेज, क्या है एमसीक्यू में? यू डोंट हैव टू लाइक रिसाइट द श्लोका कंप्लीटली. यू ऑलरेडी हैव द ऑप्शंस, वन ऑफ देम इज द आंसर. सो डेफिनेटली 1 or 2 विल बी वीक ऑप्शंस, एंड स्पेशली दिस काइंड ऑफ टॉपिक आई डोंट थिंक एनीबडी विल फाइंड इट डिफिकल्ट. स्टिल अगर कन्फ्यूजन आ गया तो उस तरह से आप उसको रूल आउट भी कर सकते. इट्स नॉट अ बिग इशू, इट कैन बी मैनेज्ड. बट दीज आर वेरी फेमस क्वेश्चंस, मतलब काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चंस है. एंड यू बिलीव इट और नॉट, समटाइम्स इवन द टॉपर्स कैन मेक मिस्टेक्स इन सच सिंपल क्वेश्चंस. यूजुअली दिस सिली क्वेश्चंस विल इनवाइट मिस्टेक्स. इसलिए जब आप पढ़ते हैं, अगर आपको ईजी लग रहा है तो आपको ध्यान ज़्यादा देना है. ये कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का ट्रिक है. अगर आपको ईजी लग रहा है, so usually you go superficially and ultimately in the exam you may make mistake. If it is difficult, you give more time. So usually you don't make mistake. तो finally क्या होता है, at the end of the exam when you start analyzing the result, you feel like you have made mistake in the most silly questions. Silly in the sense here, what I mean by silly, everyone got it right. Even the highest rank one, the student got it right, but I got it wrong. So ऐसा नहीं होना चाहिए. So this is one such topic. Simple one. यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक. ये लेवल 1 का क्वेश्चन है. तो ये आपको ये तो शब्द के बारे में अभी समझ में आ गया. नाउ यू सी द व्याधि. व्याधि शब्द में कोई भी ऐसे टर्मिनोलॉजी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा. आमय, आम की वजह से होता है इसलिए आमय. गध, गध इज वन ऑफ द फेमस सिनोनिम फॉर द व्याधि.
agad, agad tantra. Atanka, atanka which creates some kind of fear, some kind of problem. Atanka. Again, Vyadi, Yakshma, Yakshma, Raja Yakshma. Yakshma is Vyadi here. Jwara is also very famously used synonym for Vyadi. Vikar तो आप जानते हैं, and also Roga is common. Anarthantra means पर्याय. So I don't think Vyadi word will create problem for you in exam for पर्याय. Whereas in Etu it is Samuttana and in case of Linga it is Sanstana. लिंग शब्द को आपको इजीली पता चल जाएगा. Now आकृति, आकृति means some kind of shape. What is the shape of that skin lesion? What is the shape of the swelling? So आकृति means lakshana, something related to the symptoms. Chinnam, what is the sign? Chinna, chinna is one of the commonly used term. Local language में भी यही use होता है. Chinna means some kind of mark. What is that particular mark which is giving you the diagnosis? क्या वो swollen है, क्या वो painful है, क्या वो कहाँ पर कोई discoloration है? Chinna, what is the sign there? What is the exact mark there? Vyanjanam, Vyanjanam is also commonly used. Vyanjanam. Next, Rupam. Rupam is also very well known. Anarthantaram. तो अगर इनमें से अगर आपको देखना है तो आई थिंक संस्थाना इज द वन. आई थिंक बाय नाउ यू आर क्लियर विद दैट. अदर वन कुड बी व्यंजन. अदर ऑल यू कैन मैनेज. सो विद दिस थ्री पर्याय देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन नाउ. एंड वन मोर पर्याय इज देयर दैट इज रिलेटेड टू द संप्राप्ति. निदान पंचक संप्राप्ति. देयर इट इज मेंशन्ड एज जाति एंड आगति. जाति ही इति जन्म. Jati and Agati are the synonyms for Samprapti. So only two synonyms for Samprapti and explanation is given by Chakrapani. Now मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पूरे चैप्टर में जो भी पर्याय पहले था, मतलब पर्याय थे, I have put them together. Now any kind of question related to पर्याय should be from this only. ये टेक्निक है. This is how you can go ahead with this kind of study. So I have compiled all the पर्याय. So now पर्याय is over. So what next? We'll go on to the second part, that is numericals, Sankyani. So many numbers in each chapter. हर अध्याय में आपको numbers मिलेंगे, numbers ही numbers. And Charaka Nidana first chapter, a very small chapter, but if you analyze, you may be shocked to see so many numbers. सबसे पहले जो है रोग कारण तत् त्रिविधम, the रोग कारण are 3 number. व्याधि भेद if you go, अतः त्रिविधा व्याधयः द्विविधाश्च अपरा. So he mentions 3 types of diseases and also 2 types of diseases. 3 in relation to Agneya, Vayaviya, and then the other one and related to the Manasika, that is Rajasika and Tamasika, Rajas and Tamas 2. So व्याधि भेद 2 और 3 उस तरह से लिखा हुआ है. ये नाम क्या है आगे हम देखेंगे, बट जस्ट आई एम शोइंग यू द पॉसिबल नंबर्स इन दिस चैप्टर. रोग परीक्षा, दिस इज व्याधेः पंचविध ग्रहणम. रोग परीक्षा, that is in relation to the 5 ways of getting a disease. tasya upalabdhi, that is nothing but nidana panchaka, nidana purva rupa rupa upashaya and the aptibhi samprapti. So upashaya anupashaya beda is mentioned in the commentary and also in the main line we are able to get that. लेकिन directly आचार्य चरक ने 18 करके नहीं बताया. He has not mentioned 18 types as such by himself, but analytically when we go with the examples and the classification, definitely we'll get 18. इसलिए जहाँ पर भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ. एंड यूजुअली नंबर्स विल बी आस्क्ड ओनली व्हेन आचार्य मेंशंस, अदरवाइज ओनली फेमस वंस कैन बी आस्क्ड, नॉट द कंट्रोवर्शियल वंस. संप्राप्ति का भेद भी वहाँ पर नंबर है, नंबर नहीं है, लिखा नहीं है, बट व्हेन यू काउंट, व्हेन यू एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट, यू विल फाइंड 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ संप्राप्ति. एंड ज्वरा संख्या संप्राप्ति, वेरी फेमस क्वेश्चन, दैट इज अष्टौ ज्वराः. सो इन दैट ऑल्सो निज ज्वरा एंड आगंतुज ज्वरा. निज ज्वरा इज ऑफ अगेन मल्टीपल टाइप्स. 2 टाइप्स का हो सकता है, 3 टाइप्स का हो सकता है, 4, 7. व्हाट आर दोस, विल सी दैट. ये सारे श्लोक में लिखा हुआ है. अगर इतना मल्टीपल ऑप्शन है तो पॉसिबली दे वोंट आस्क क्वेश्चन, बट इफ देयर इज ओनली वन नंबर दे कैन आस्क क्वेश्चन. बट आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू गो अबाउट ईच लाइन. नेक्स्ट आगंतुज ज्वरा, 4 वेरिएंट्स आर मेंशन. अगेन ने नंबर आचार्य चरक ने नहीं मेंशन किया, लेकिन एनालाइज करेंगे तो 4 डिफरेंट वहाँ पर अलग अलग तरह के आगंतुज ज्वर देखने को मिलता है. नाउ आफ्टर नोइंग दिस नंबर्स, पंचविधम गधम इन केस ऑफ तत्र श्लोका, एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो तत्र श्लोका है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी पार्ट. यूजुअली स्टूडेंट्स रीड द एंटायर चैप्टर एंड फॉरगेट अबाउट दिस लास्ट पार्ट, बट समटाइम्स द एग्जामिनर फाइंड्स क्वेश्चंस इन दैट तत्र श्लोका. दैट इज द कंक्लूजन पार्ट. व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर समराइज्ड इन 4 to 5 लाइन्स, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स. वहाँ काफ़ी सारे मैटर जो है छुपा होता है. कभी कभी इतना कंसाइज किया गया है कि उस शब्द को देखने के बाद आपको पता नहीं चलेगा. डायरेक्टली इफ यू सी तत्र श्लोका, समटाइम्स यू मे गेट कंफ्यूज्ड.
That is why always keep in mind whenever there is at the end tatra shlokaha, please give more focus on that. There it is mentioned as panchavidam gadam. 5 different types of gada are mentioned. Now what is that? We'll see in the tika later. So this was about numericals. इतना छोटा सा चैप्टर लेकिन इतना न्यूमेरिकल्स, इतना नंबर्स है. So when you compare like this, it becomes more easy for you. Now let us see what are those. अभी तो नंबर तो हमने देख लिया क्योंकि नंबर तो डायरेक्टली आता है क्वेश्चन में. बट नाउ व्हाट आर दोस? तत् त्रिविधम, मैंने इसे तत् त्रिविधम रोग कारणम, दैट इज वेल नोन. इसमें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. यू नो ऑलरेडी. कालार्थ कर्मणाम योगो, द सेम थिंग. असात्मेन्द्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध एंड परिणाम. बट यू शुड नो दैट दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में भी लिखा हुआ है रोग के कारण क्या है, 3 है मेजर. व्याधि के भेद. सो भेद आई मेंशन्ड 3 types and 2 types. 3 types are Agneya, Saumya and Vayavya. That is Pittaja, Kafaja and Vataja, like that. That is Sharirika dosha based. And the Apara Dvidoshaja, Dvivida are nothing but Manasika Roga, that is Rajasika or Tamasika. Roga Pariksha, that is Vyadehe Panchavidam, Grahanam, Graham. Which are those? You know that. Through the Nidana Panchaka, we can get the disease. If you see the Upashaya Anupashaya, directly mentioned नहीं है, but explanation में हमें देखने को मिलता है. We'll see this at the end when we see the commentators version. The explanation is not given by आचार्य चरक, लेकिन उदाहरण सहित जो है आचार्य चक्रपाणी ने दिए हैं. दैट इज अ फेमस क्वेश्चन फॉर एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम. संप्राप्ति भेद, नंबर इज नॉट डायरेक्टली मेंशन बट व्हेन यू सी द नंबर नेम्स, संख्या संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, बलकाल संप्राप्ति, दिस 5 आर देयर. इनमें से कई सारे चीज़ आप जानते हैं बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स. फर्स्ट रोग निदान, देन यू हैव चरक संहिता, देन यू हैव अगेन चरक उत्तरार्ध, एंड एट द सेम टाइम काय चिकित्सा. मल्टीपल like subjects you are going to get this topic. That is why you may be thorough with that, but still आपको कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट यहाँ से नया मिल सकता है. नेक्स्ट विल सी दी संख्या संप्राप्ति. जैसे मैंने उस टाइम कहा था, दैट इज 8 टाइप्स ऑफ ज्वरा. विच आर दोस? दोषज आर 7 इन नंबर. कैसे 7? एक दोषज 3, 1 2 3, वातज पित्तज कफज. द्विदोषज आर 3 इन नंबर, वात पित्त पित्त कफ एंड कफ वात. त्रिदोषज, सो सप्त जो है वो निज है. And what is the extra one? That is the additional one is Agantujvara. 7 doshaja and 1 Agantuja. Total it becomes 8. Next, I mentioned one more slok. One more slok I had this line. मतलब इस तरह से एक लाइन भी था. निज में भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं, 4 7 like that. Now what are these exactly 2 3 4 और 7? That is cleared by आचार्य चक्रपाणी. जो नीचे में दिखा रहा हूँ, that is the चक्रपाणी version. He says 2 types of निज ज्वरा are what? शीत अभिप्राय भेदात and उष्ण अभिप्राय. शीत ज्वरा and उष्ण ज्वरा. In this context, Dvivida Jvara refers to Shita Jvara or Ushna Jvara. And then Trivida refers to Vata Pitta Kapha Tridosha Vedat. And when I said Chaturvida, it removes the Dvandvaja because it takes Vata Pitta Kapha and then directly goes with Sannipataja. And then Saptavidam, आप जानते हैं, there all the things will come. So that you already know that about that. Vata Pitta Kapha, then Dvidoshaja and Dvandvata, I mean Sannipataja. तो सब आ गए उसमें. That is Saptavidam. So Dvi, Tri, Chaturvidam and Saptavidam. Shitoshna, Vata Pitta Kapha, plus Sannipataja Chaturvida, and then plus Dvandvaja, it becomes 7. तो ये जो है ये निजे ज्वर का अलग अलग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है. इफ यू कंसिडर द्वंद्व इट बिकम्स 7, इफ यू रिमूव इट बिकम्स 4, इफ यू रिमूव सन्निपातज आल्सो इट बिकम्स 3, इफ यू टेक ओनली शीत उष्ण इट बिकम्स 2, लाइक दैट. तो आगंतुक ज्वर का जो वेरिएंट्स है, जैसे मैंने बताया, नंबर्स आर नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड बाय आचार्य चरक, बट द वेरिएशंस आर देयर, लाइक अभिघातजन्य, नेक्स्ट अभिशंगजन्य, अभिच्छारजन्य एंड अभिशापजन्य. So what are this? And explanations more clear in Chikitsasthana, but here only the names are mentioned. Abhichara, Abhighata, Abhishanga and Abhishapa. So Abhi means 2 words. Ghata, Shanga, Chara, Shapa. So these are the different words. ये तो आप जानते हैं. So I think you are already aware of that. So this is in relation to the enumeration part. The last one जो था, जो पंचविधम गधम, जो एक्चुअली चैप्टर में नहीं है. देर इज नो स्पेसिफिक 5 टाइप्स ऑफ डिसीजेस इन द एंटायर चैप्टर, बट एट द एंड इन द तत्र श्लोक चरक मेंशंस पंचविधम गधम. वहां पर टीकाकार जो चक्रपाणी है वो कहते हैं पंचविधम रेफर्स टू आग्नेय आदि भेदेना. आग्नेय आदि भेदेना डायरेक्टली इट रेफर्स टू व्हाट? द आग्नेय, वायव्य, एंड देन द थर्ड वन
Jaliya, that is Shleshmajanya, and then the two, that is Rajasika and Tamasika. So that is Panchavidam Gadam. There he mentions two types separately, लेकिन तत्र श्लोक में merge कर दिए. So that was in relation to enumeration type. Now we move on for the Nidana Panchaka based. So this is not the beginning of Jwara again. ये तो ज्वर निदान अभी शुरू नहीं हुआ. उससे पहले ही जो निदान पंचक है उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द डेफिनेशंस देर आर नो पॉसिबिलिटीज. व्हाट डू यू मीन बाय निदान, पूर्व रूपा, नो, वेरी सिंपल क्वेश्चंस. और जो पर्याय थे वो तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया. सो नाउ व्हाट इज रिमेनिंग इज द संप्राप्ति पार्ट. संप्राप्ति पार्ट एंड उपशय पार्ट. तो संप्राप्ति सी ईयर 5 टाइप्स ऑफ संप्राप्ति. संख्या संप्राप्ति, तो उसमें he has given few examples. Ashtau jvaraha, panchagulmaha, saptakushtaani, evam adihi. So whenever you just say the number of disease, variants of disease, only number, उसमें कोई explanation नहीं देना है. Only number means there are like there is only one type of sannyasa. There are 4 types of apasmara. There are 5 types of unmada. There are 8 types of udara. There are 5 types of pandu. There are 5 types of श्वासा. There are 5 types of इक्क. ये बस ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं संख्या संप्राप्ति. संख्या संप्राप्ति मीन्स हाउ मेनी वेरिएंट्स आर कॉमनली सीन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो शास्त्र में लिखा हुआ. ओनली द नंबर, दैट इज नथिंग बट संख्या संप्राप्ति. प्लीज रिमेंबर दिस संख्या संप्राप्ति इज यूजुअली रेफर्ड फ्रॉम अष्टोदरी अध्याय. जो अष्टोदरी अध्याय में आचार्य चरक ने जो ग्रुप्स ऑफ डिसीजेस दिए हुए हैं, usually sankhya samprapti question will come from there. So this is one trick. That chapter has to be very thoroughly studied. Next, what do you mean by pradanya samprapti? वहाँ पर तारातम भेद आएगा, तारातम भेद. So you have good, better, best, fast, faster, fastest. These are nothing but superlatives. एक है, उससे ऊपर है, उससे भी ऊपर. ऐसे ही if there is a dominant dosha and if there is a dominant dosha, other one is not so dominant, फिर क्या होगा, दूसरे वाले को हम जो डोमिनेट है उसको हम थर नाम से बोलते हैं, थर. अदर वन विल बी सिंपली विद द नेम. एंड इफ देर आर थ्री इन्वॉल्वमेंट, 3 दोषा इन्वॉल्वमेंट, वन विद द मिनिमम विल बी कॉल्ड विद द नेम. द वन विच इज लाइकली डोमिनेंट, सेकेंड डोमिनेंट, उसको तर नाम से, तर शब्द से जानते हैं. तर तमा इज द लास्ट वन, द हाइएस्ट वन. तमा इज हाइएस्ट हियर. Tara is medium, and other one will not have any name. Good, better, best. Best is Tama, better is Tara. So that is nothing but Pradhanya Samprapti. Which is Pradhana? Which is more dominant? If I say Pitta, the Panduroga is having which kind of Pradhanya Samprapti? It is Pitta dosha. Because doshaha Pitta Pradhana astu yasya kupyanti dhatushu. Vata Vyadi, what is the Pradhanya Samprapti? It is Vata dosha. So whenever in a संप्राप्ति one dominant दोष is there, it is called as pradhana. उसके साथ जो है वो तारतम भाव से नीचे हो सकता है. So that is what it means. So tarathamaabhyam. If there are 2 in number, only tara is sufficient. If there are 3 in number, even tama is required. Next, vidhi. Vidhi means prakara. मतलब यूजुअली जो बाकी 4 में बैठता नहीं है, the one which doesn't fit in the remaining 4 संप्राप्ति will usually come in vidhi संप्राप्ति. Like in case of a disease like jwara, you have nija jwara, agantush jwara. Whether it can be put in sankhya samprapti, no. Whether it is pradhanya, no. यहाँ पर कोई प्राधान्यता है ही नहीं. Whether it can be the next one, the vikalpa, no, it is not vikalpa. Or even when it can't be dosha, balakala dosha, no. तो जो बचेगा वो विधि में आएगा. So in examination you will get निजागंतु भेदेन व्याधि. व्याधि संप्राप्ति is a classification, is an example for which संप्राप्ति. आपको ऑप्शन मार्क करना है. इट इज विधि संप्राप्ति. त्रिदोष भेदेन विधि संप्राप्ति. साध्यासाध्य भेदेन विधि संप्राप्ति. मृदु दारुण भेदेन विधि संप्राप्ति. आपको एग्जामिनेशन में एक चीज याद रखना है. यूजुअली द एग्जामिनर विल गिव द सेम वर्ड्स व्हाट इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट. टू अवॉइड कंट्रोवर्सीज रेफरेंस देना पड़ता है एग्जामिनर को. सो दे विल यूजुअली कोट दीज लाइन्स, दीज वर्ड्स. सो इफ यू हैव दीज वर्ड्स इन योर माइंड, डेफिनेटली उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा. So this vidhi samprapti will be usually asked in exam. What about vikalpa? विकल्प में क्या है? अंशांशु कल्पना, अंशांशु कल्पना. सो दोषाणाम अंशांशु कल्पना, ये कौन सा संप्राप्ति का भेद है? ये विकल्प संप्राप्ति.
Here we go for Anshanshu Kalpana, means we go in depth about each dosha also. जैसे if a person is having Vataja Jwara, so Vataja Jwara is Pradhanya Samprapti because Vata is dominant. So if I say Ruksha Guna of Vayu is dominant, Ruksha Guna of Vayu is responsible, ये अंशांशु कल्पना है. लघु से ज्यादा रुक्ष डोमिनेंट है. So when I go in depth, अंशांशु कल्पना, I am analyzing the guna सिद्धांत here. So अंशांशु कल्पना word, please remember it is विकल्प संप्राप्ति. इतना काफी है एग्जाम के लिए, इतना काफी है. एंड लास्टली बला दोष काल संप्राप्ति, बला काल दोष संप्राप्ति. So here whenever a disease gets a favorable situation, दोष और बल दोनों का जब काल आएगा, at that time it will show the action. अपना जो symptoms है तब दिखाएगा, that is called as बला दो काला दोष संप्राप्ति. The best example is विषमज्वरा. विषमज्वरा. So in विषमज्वरा you have santata, satata, अन्यदुष्का, तृतीयका, चतुर्थका. So when dosha are having continuous bhala throughout the day, santata jwara. So दिन में 2 बार, दो दिन में 1 बार, every second day. So like that you have variation. That is the best example for bhala dosha, bala kala dosha samprapti. This is the 5th variant of samprapti. तो संप्राप्ति के जो भेद है 5, उनमें से कोई एक एग्जाम्पल आ सकते हैं. You may be asked to write the name of the samprapti. Like Astau Jwara. What is the type of samprapti here? Your answer will be Sankhya samprapti. Vataja Jwara. Your answer will be Pradhanya samprapti. So Ruksha Guna Janita Vata Vyadhi. Your answer will be Amshanshu Kalpana. So Vishama Jwara. Balad Kala Dosha samprapti. So like that your examination questions can be framed इनमें से. तो अभी हमने अभी तक जो भी इंट्रोडक्शन पोर्शन था निदान पंचक तक वो हमने खत्म कर लिया. सो नाउ द एक्चुअल चैप्टर ऑफ ज्वरा स्टार्ट्स. द एक्चुअल चैप्टर ऑफ ज्वरा स्टार्ट्स. सो व्हेन द ज्वरा निदान स्टार्ट्स, सो यू नो it starts with the classifications are already given. So it starts with actually the Vataja Jwara. Individual Nidana, individual Samprapti, individual Lakshana. Pittaja Jwara, individual Nidana, individual Samprapti and Lakshana. Like that Kapha. Then Dvandva and Sanipata together, and lastly Agantuja. So what and all possible questions are there from this Jwara Samprapti, Jwara Nidanam? So from Samprapti point of view, one of the important one is the Srotas. ज्वर निदान में कौन सा स्रोतस इन्वॉल्व है? आचार्य चरक के द्वारा. आपका आंसर रहेगा रस स्वेद वहानि स्रोतांसी पिदाय. दैट इज रसवह स्रोतस एंड स्वेदवह स्रोतस. रसवह स्रोतस का भी ब्लॉकेज होगा, पिदाय टू कवर, एंड स्वेदवह स्रोतस का भी कवरिंग होगा, बिकॉज ऑफ विच द पर्सन डजंट स्वेट, और पर्सन को कोई नरिशमेंट नहीं मिल रहा है. सो द पर्सन टेम्परेचर इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड ही मे अंडरगो धातुक्षय. सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन ज्वर. What is the main srotas involved in the patient? A question है. Rasavaha and Svedavaha both are getting affected here. That is applicable for all kinds of jwara. And Vataja Jwara लक्षण में अगर आप देखेंगे, Vataja Jwara निदान वगैरह में इतना मुश्किल वाली बात नहीं है, because usually the nidana if they are confusing, if I say imagine the person is having ati vyayama, which dosha is going to get aggravated? So you will say it is definitely Vata. So उस तरह के जो निदान है वो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, विच आर यूजुअली गोइंग हैंड इन हैंड विथ द पर्टिकुलर दोष. लेकिन अगर कोई ऐसे शब्द आया जो उस दोष से मैच नहीं हो रहा है, यूजुअली दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड. विल सी सम एग्जांपल्स लाइक दैट. सो नो पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम निदान संप्राप्ति ऑफ वाता ज्वरा. डायरेक्टली लक्षण देयर आर सम पॉसिबिलिटीज. जैसे इफ इट इज वाता डेफिनेटली विल बी चंचल, राइट? चंचल होगा. तो कभी ज़्यादा तेज ज्वर है, कभी बहुत कम ज्वर है, तापमान कम है, तो विषम आरंभ विसर्गित्वम. ऊष्मणो वैषम्यम कब शुरू हो गए पता ही नहीं है. विषमता, दिस इज विषमता इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ वाता. विषमता नॉट श्योर व्हेन इट हैपेंस. ऊष्मणो वैषम्यम, ऊष्मा भी फिक्स्ड नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कभी कम. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वाता, ये आप जानते हैं. दैट इज द ऊष्मणो वैषम्यम. तीव्र तनुभाव अनवस्थानानि ज्वरस्य. तीव्र भाव तनुभव, इंटेंसिटी ऑफ द ज्वर एक्सेसिव, समटाइम्स वेरी माइल्ड. तीव्र इज एक्सेसिव, तनु माइल्ड. तो ये तो ठीक है. बाकी आप देखिए यहाँ पर जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया, क्लृप्ति भाव, क्लृप्ति भाव विच मीन्स अप्रवर्तन, मतलब ये पास नहीं हो रहा है उस अर्थ में. हियर ही टॉक्स अबाउट टू मीनिंग्स. वन इज
द पुरीश मूत्रादि निष्क्रमण इज गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड। दूसरा अर्थ है स्किन रिलेटेड, त्वक रूक्षता के बारे में। दोनों अर्थ है इसमें, क्लप्ति भाव, उसको हम लास्ट में एक बार देखेंगे, आपको यूज हो जाएगा। बट एक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज द लक्षण ऑफ वातज ज्वरा, नॉट पित्तज और कफज। अप्रवृत्ति, वात मूत्रादि नाम अप्रवृत्ति। अन्मोह च अप्रसिद्धि ही, अनमोह च अप्रसिद्धि ही, अनु संधि विल नॉट फंक्शन, स्वव्यापार अक्षमत्व, मतलब अपना अपना जो फंक्शन है, मूवमेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। सो अगेन विच ज्वरा, वात, मूवमेंट, अनु रिलेटेड टू मूवमेंट, राइट। तो मूवमेंट कम होगा, यहाँ पर मूवमेंट कम होगा, वात, वात ज्वरा। अप्रवृत्ति हो रहा है, अपमान वायु गेटिंग अफेक्टेड, क्लप्ति भाव। अगर आपको क्लप्ति भाव का मीनिंग पता है तो आप लिख देंगे वात ज्वर। इन द सेम वे सी अन्न रस खेद, खेद, सर्वरसेशु अनिच्छा, मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं करता, दैट इज अगेन वातज ज्वर। हियर इंपॉर्टेंट थिंग इज द ट्रांसलेशन इज नॉट आस्क्ड इन एग्जाम, प्लीज कीप इन माइंड the terms mentioned in the shloka will only be asked. Don't get carried away by Hindi meaning or English meaning or any other language translation. Always refer to the original shloka when you are preparing for AIPGT, otherwise you will get confused. तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको विथ रेफरेंस दिखा रहा हूँ। दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग यू क्लियर। अन्न रस खेद इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ रस। विषाद, विच यू थिंक यूजुअली मानसिक व्याधि का लक्षण हो सकता है, वातज ज्वर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। इट कम्स रेगुलरली इन एग्जाम, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ वातज अनात्मज विकार, आपको याद होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन वातज ज्वर लक्षण पॉइंट ऑफ व्यू। If you go with पित्तज ज्वरा, in संप्राप्ति it is mentioned द्रवत्वात् अग्निमुपहत्य, मतलब वहां पर अग्नि का मांद्य जो है, अग्निमांद्य जो होता है, अग्निमांद्य इज दी साइलेंट फीचर ऑफ ऑल ज्वरा, ये तो होना ही है। बट इन केस ऑफ पित्तज ज्वरा इट इज मेंशन ड्यू टू द द्रव गुण ऑफ पित्त, दिस कुड बी अ क्वेश्चन। जैसे अंशांशु कल्पना की जो हम बात कर रहे थे संप्राप्ति में, तो वो कौन सा गुण है जो पित्त का ये अग्निमांद्यकर अवस्था को प्राप्त करने के लिए मदद कर रहा है, दैट इज द्रव गुण। द्रव गुण की वजह से यहाँ पर अग्निमांद्य हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, द गुणा इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जस्ट लाइक लक्षण ऑफ वात दोष, वात ज्वरा, सी हियर पित्त चर्दनम, द पर्सन कैन हैव वॉमिटिंग, पित्त का वहाँ पर एक विजन हो सकता है, यू कैन सी द पित्त। प्रलाप, सी दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, प्रलाप, यूजुअली व्हाट डू यू कनेक्ट प्रलाप विथ वात दोष, यू एक्सपेक्ट वात ज्वरा, बट यू विल बी asked to mark wrong answer here. Pralapa is one of the feature, सामान्य लक्षण ऑफ पित्तज ज्वर। अब यहाँ पर दो बात है, प्रैक्टिकली वातज ज्वर में हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट फिनोमेना, बट इन एंट्रेंस व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज डॉक्यूमेंटेड इन द टेक्स्ट। अब वहाँ पर आपको एनालिटिकल आंसर नहीं देना है। इफ इन टेक्स्ट प्रलापा इज रिटन इन पित्तज ज्वर, प्लीज कीप इन माइंड, डोंट ट्राई टू अप्लाई योर लॉजिक देयर, इसलिए कंफ्यूजन आ जाते हैं। एंड यूजुअली एग्जामिनर विल फाइंड सच क्वेश्चंस वेयर यू विल बी फोर्स्ड टू मार्क रॉन्ग आंसर। ये पर प्रलापा इट्स पित्तज ज्वरा, नॉट वातज ज्वरा, प्लीज कीप दैट इन माइंड। बाकी आप जानते हैं शीताभिप्रायता, द पर्सन वांट्स टू स्टे इन शीतल प्रदेश, दैट इज पित्तज। इन केस ऑफ वाता एंड कफज, पीपल विल फील उष्णाभिप्रायता, दे वांट मोर ऑफ उष्णता। कफज ज्वर में संप्राप्ति निदान में कुछ खास नहीं है, बट लक्षण में छर्दी है। इन द प्रीवियस केस व्हाट वाज देयर, पित्त छर्दनम, बट इन दिस केस ओनली छर्दी, अदर देन दैट ऑल आर कफज लक्षण ओनली। गुरुगात्रता है, रिलास है, हृदय उपलेप, all these are related to kapha dosha, so no confusion. So from vata pitta kapha, few words to remember. Next, द्वंद्वज एंड सन्निपात जो वेरिएंट है उसमें निदान में कुछ स्पेसिफिक निदान दिया हुआ है, जैसे अन्न परिवर्तात सहसा, सो अन्न परिवर्तात, अचानक से, इंस्टेंटली, इफ द पर्सन चेंजेस द फूड हैबिट और लिव्स द फूड, लाइक डाइट प्लान चेंज्ड, सो दैट इज वन ऑफ द कॉज फॉर द्वंद्वज और सन्निपात। जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, असात में गंधादि ग्रहण करने से, मतलब गंध ग्रहण करने से, स्त्रीणाम च विषम प्रजननात्, इन केस ऑफ फीमेल्स इफ द लेबर द पोस्ट लेबर केयर इज नॉट प्रॉपरली डन, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज, दैट इज प्रजातानाम मित्योपचारात्, एंड ड्यूरिंग द लेबर ऑल्सो इफ देयर इज सम इश्यू, विषम प्रजननात्, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑल्सो प्रॉब्लम विषम प्रजनन, और आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो नॉट टेकन केयर प्रॉपरली, मित्योपचारात्, ये भी द्वंद्वजा और सन्निपात ज्वर के लिए कारण है। कुछ पेक्यूलियर कारण जो आपको याद होना चाहिए। ऑफ कोर्स दिस कांट बी पुट इन ए फॉर्मूला, इनको सब फॉर्मूला नहीं बना सकते, आपके ध्यान में होना चाहिए। इफ द क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम इन ए डिफरेंट वे, यू विल बी इमीडिएटली अलर्टेड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। बस आपको 2-3 बार उसमें फोकस करके पढ़ना पड़ेगा।
So I would suggest you go with the Sanskrit words, the technical terms. That will be easy for you when you clear the exam, when you are writing the exam. Translation से आप याद कर रहे हो तो confusion हो जाएगा, because translations are not always 100% possible to be again recollected with Sanskrit word. Next, about the Agantuja Jwara. So dosha connection with these four are important. Like Abhigata Jwara, Abhigata, which dosha is going to get affected? Abhigat की वजह से वात दोष का प्रकोप होगा. Whereas in case of Abhishanga, Abhishanga is mentioned here as Vata Pitta Abhya. Abhighata is Vataja, that is Abhighata leads to Vata Vriddhi. Abhishanga Jwara, उनमें से कौन सा दोष का प्रकोप होगा? Both Vata Pitta. And Chara and Abhishapa, all three dosha सन्निपात है ना, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं. अभी चारा शापा त्रिदोष, चारा शाप त्रिदोष, शंग वातपित्त. Whereas only Abhigata it is pure Vataja. And in case of Abhigataja Jwara, after Vata dosha, the Rakta involvement is seen. Dushta Shonita Adhishtanena. In detail में आएगा जिन चिकित्सा स्थान, but in this chapter only few things are mentioned. Next, about the Puru Rupa. A very peculiar Puru Rupa is there in. One of them is Jwara, other one is Raja Ekshma. मतलब कुछ चैप्टर्स जो है कुछ क्वेश्चंस के लिए फेमस है. लाइक फॉर एग्जांपल इन वाताज ज्वरा, आई मीन ज्वरा निदान, एनी क्वेश्चंस आर पॉसिबल, बट जब मैं राजयक्ष्मा की बात करूंगा तो वहां पर पूर्व रूप वेरी इंपॉर्टेंट है. षड रूपी राजयक्ष्मा की, एकादश रूपी राजयक्ष्मा इंपॉर्टेंट है. मीन्स देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच एग्जामिनर इमीडिएटली गेट्स देम इन ए माइंड. इन दैट वे दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल क्वेश्चन पूर्व रूप, बिकॉज वेरी पेक्यूलियर वंस. जैसे दीर्घ सूत्रता इस चिरकारी, द पर्सन विल फंक्शन वेरी लेट, डिलेड एक्शन जो है उसको हम कहते हैं दीर्घ सूत्रता. लेजीनेस, द पर्सन डजंट वांट टू वर्क फास्ट, ये ज्वर का पूर्व रूप है. प्लीज कीप दैट इन माइंड. देयर इज वन मोर वर्ड, शब्द शीत वात आतप सह असहत्वम. कभी कभी लगता है कि वो सहन कर पाएगा एसी को, कभी कभी नहीं लगता, कभी कभी उनको गर्मी लगता है. सो दिस इज द ज्वर पूर्व रूप. So Shita Vata, he wants to stay outside, suddenly comes back inside. He wants to stay in the sunlight, suddenly comes back. मतलब ये जो कभी कभी सहत्व है कभी असहत्व है, दिस इज ज्वरा. प्लीज रिमेंबर दिस वाज आस्क्ड इन द 2016 few of the entrance examination, very common question at that time. शब्द शीत वातातप सहत्व असहत्वम, यूजुअली इस टर्म से किसी को ज्वर के बारे में याद ही नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ पूर्व रूप ऑफ ज्वरा. वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. Next, you have the important one, that is Gurunam Vakyeshu Abhyasuya. If someone gives you advice, you won't feel like listening to them, the seniors, the elders. So, ये प्रकृति से अलग है. If you are by nature like that, that's a different one. But if your nature is not like that, अगर आपको ये symptom मिल गया तो it means you may get ज्वर in near time. So, two important words in this. One is Dirgha Sitrata, other one is Gurunam Vakyeshu Abhyasuya. Similarly, बालेभ्य प्रद्वेषा, इवन दो यू आर लाइकिंग द किड्स प्लेइंग एवरी टाइम, एक दो दिन के लिए आपको किड्स का जो भी आवाज़ है या खेलने का जो मन है आपको इरिटेट कर देगा. यू वांट देम टू जस्ट गो अवे, प्रोबेबली यू आर गोइंग टू गेट ज्वर. वेरी इंटरेस्टिंग पूर्व रूप, वेरी इंटरेस्टिंग. तो बालेभ्य प्रद्वेषा. सो एग्जामिनर विल फाइंड सच इंटरेस्टिंग पूर्व रूप, नॉट द यूजुअल वंस लाइक अरुचि आत्माना. तो इस तरह से यूजुअली नहीं पूछा जाता. सम एक्सक्लूसिव वंस, सम which are present in only one disease, some are very interesting, some psychological ones. So such things are important. इस चैप्टर में पूर्व रूप में आप अभी एनालाइज कर रहे हैं तो पता चलेगा. स्वधर्मेशो अचिंता, खुद के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे, क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे मुझे साफ रहना है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द पर्सन हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू टेक जजमेंट ऑफ हिज ओन. स्वधर्मेशो अचिंता, खुद के बारे में सोच ही नहीं रहा. सो दैट इज इन रिलेशन टू द पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम पूर्व रूप. अन्य भी है लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ. सो दिस फोर, सो दीर्घ सूत्रता, गुरुनाम वाक्येषु अभ्यसूय, ऑफ कोर्स द शब्द शीत वात आतप सहत्व असहत्व, एंड देन दिस टू बालेभ्यः प्रद्वेष एंड स्वधर्मेषु अचिंता. 5 commonly asked पूर्व रूप क्वेश्चन इन ज्वर. सो नेक्स्ट, सडनली द चैप्टर मूव्स अहेड विद द चिकित्सा पार्ट. वो भी पूर्व रूप की अवस्था में, क्योंकि पूर्व रूप की बात चल रही है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वी कैन स्टॉप द डिसीज, द प्रोग्रेशन, बाय 2 methods. वन इज लघु अशना और अपतर्पणा. Initially just go for Laghu Ashana or Apatarpana. And in case of Jirna Jwara, once the Jwara has attained Jirna Avastha, मतलब ये details जो है चिकित्सा में मिलेगा, that time we'll see. So Sarpi Shaha Panam Prashasate. Please keep in mind, Jirna Jwara, Sarpi Pana. That's all. The point of interest is
जीर्ण ज्वर सर्पिपाना, बिकॉज सर्पिपाना कैन लीड टू ऑल द त्रिदोष शमना. अभी क्वेश्चन ये है कि सर्पी जो है कैसे त्रिदोष का शमन करते हैं, ये पॉसिबल क्वेश्चन है. सो वात विल बी सबसाइडेड थ्रू स्नेह, स्नेहात वातम शमयति. शैत्यात पित्तम ऊष्मणम च, शीत के वजह से, शीतता की वजह से पित्त एज वेल एज ऊष्म भाव, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. Whereas kapha dosha, this is the important one. Kapha dosha will get subsided by sarpi due to sanskara. Sanskarat kapham, this is important. Snehat vatam, sanskarat kapham, shaityat pittam. These three words you should remember. Shaityat pittam, snehat shamam, that is snehat vatam, संस्कारात कफम. संस्कार वाला जो शब्द है ये यूजुअली पूछे जाते हैं फॉर कफ दोष. So with that, the Jwara Nidana Panchaka and slight introduction to the Chikitsa part questions are also covered. Now, the reference based question, मतलब कौन सा लाइन आपको याद होना चाहिए कि ये इस चैप्टर में. You need not remember the shloka as such, but you should know this has come in this chapter. Like तत्त्रिविधम, ये जो असात्मेन्द्रियार्थ संयोग वगैरह है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में एंड यू आर आस्क्ड टू राइट विच चैप्टर दिस श्लोका इज फाउंड, दिस सूत्र इज फाउंड, you should also remember this is there in other chapters, but at the same time in Nidana first also it is there. That is the point of interest what I am showing. Jwarastu eka eva santapalakshanaho, very important, reference based. Next, Jwar ke bare mein at the end of this chapter he mentions so many, you can say, the possible destructions by Jwara. Like one is how it got originated, Maheshwara Kopa Prabhava, you know that. और वहाँ पर एक लाइन देखिए, प्रज्ञा बल वर्ण हर्ष उत्साह रासक्र. अगर मान लीजिए उतना ही आ गया जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा हूँ, आइडेंटिफाई द डिसीज वेयर प्रज्ञा बल हर वर्ण हर्ष उत्साह रासक्र इज रिटन. मे बी may not think about Jwara because nowhere something related to the temperature is mentioned here. Similarly, न अन्य व्याधयः तते दारुण बहुपद्रव दुहु चिकित्स्याः च यथा अयम. सो अन्य व्याधि है नहीं जो इतना उपद्रव युक्त है, चिकित्सा के लिए भी मुश्किल है, एंड एट द सेम टाइम लाइक इट विल बी वेरी हाईली, यू कैन से, विद कॉम्प्लिकेशंस, यथा आई एम जस्ट लाइक दिस. तो अगर ये लाइन आ गया तो वहाँ पर भी मान लीजिए ऑप्शंस पे राजा एक्समा है तो आप राजा एक्समा टिक कर देंगे, बिकॉज यू सी फ्रॉम योर माइंड दैट इफ यू आर नॉट स्टडी, इमेजिन दैट इज द केस, देन यू मे नॉट थिंक ज्वारा एज द कल्प्रिट हियर, बिकॉज आपको लगता है कि बड़े बीमारी होगा तो तभी होगा. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. सर्वरोग अधिपति, of course it is mentioned in other chapters also, but इसमें भी है सर्वरोग अधिपति is equal to ज्वरा. स महामोह, even at the death time the person will feel मोह रूपी ज्वरा. what is महामोह in case of the disease? it is ज्वरा. तो की टर्म्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, you have to focus that. so that's all about this particular point, the reference based. and ज्वरस्य आमाशय समुत्तत्वात्, why we have to go for अपतर्पणा? because Jwara is Amashya Samutta Vyadhi. So this is one of the commonly asked question. So next, Udaharana based. Only one Udaharana is there. उदाहरण का मतलब क्या है? Whenever you make use of निदर्शन तंत्र युक्ति, where you give example, common examples जो सबको समझ में आ जाए, वहाँ पर सर्पी के समय में आया. Just like प्रज्वलितम वेश्म परिशिंचति वारिणा. प्रज्वलितम वेश्म, वेश्म इज रूम, a room which is having fire. उसको शांत करने के लिए क्या चाहिए आपको? वारी, जल चाहिए. नराह शांति में अभिप्रेत्य, अगर शरीर के अंदर के जो तापमान है, शरीर के अंदर के जो ज्वर है, उसको शांत करने वाला कौन है? सर्पी, इन केस ऑफ जीर्ण ज्वर. सो अगर मान लीजिए फर्स्ट लाइन आ गया, यथा प्रज्वलितम वेश्म परिशिंचति वारिणी, इन विच कॉन्टेक्स्ट इज इट हैज कम? इट इज जीर्ण ज्वरावस्था सर्पी प्रयोग, दैट टाइम इट हैज कम. सो दिस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर उदाहरण. लास्टली वी गो फॉर चक्रपाणी बेस्ड क्वेश्चन. चक्रपाणी, हालांकि बीच में मैंने आपको कई सारे चक्रपाणी का टीका के साथ बता दिया, बट स्पेसिफिकली इन दिस चैप्टर फ्यू चक्रपाणी रिलेटेड मैटर हैज टू बी नोन. लाइक इट सेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ निदान. वन इज व्याधि बोधक, अदर वन इज व्याधि जनक. व्याधि जनक इज नथिंग बट द हेतु, जो व्याधि के लिए कारण है वो है. व्याधि बोधक इज नथिंग बट निदान पंचक. दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड. व्याधि बोधक इज निदान पंचक. दिस वन, द उपशय, 18 टाइप्स ऑफ उपशय. ये कैसे 18 होगा? अब देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चिकित्सा. वन इज विपरीत चिकित्सा, अदर वन इज विपरीतार्थकारी चिकित्सा. ये आप जानते हैं. एंड विपरीत कैन बी इधर हेतु विपरीता, इट कैन बी व्याधि विपरीता, द डिसीज वन, और इट कैन बी बोथ हेतु एंड व्याधि विपरीता. हाउ टू गो अबाउट दिस? इट कैन बी द औषधा मेडिसिन एज सच, इट कैन बी द आहार, द फूड, और इट कैन बी विहार, एनी एक्टिविटी.
तो यहाँ पर जो चक्रपाणी का टीका है इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस विल कम. सिमिलरली विपरीतार्थकारी वाले में भी आ सकते हैं. विपरीतार्थकारी में भी 9 है. सो 9 यहाँ पर हो गया, 9 यहाँ पर हो गया, इसलिए मैंने कहा दे आर 18 इन नंबर. उपशय इज 18 इन नंबर, अनुपशय इज ऑल्सो 18 इन नंबर, जस्ट दी सेम. तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे आप देखिए अतिसारे स्तंभनम पाठादि. दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर विच काइंड ऑफ उपशय इफ दिस इज द क्वेश्चन. मान लीजिए क्वेश्चन है अतिसारे स्तंभनम पाठादि. सो इसमें सबसे पहले आपको चूज करना है, मतलब सोचना है कि क्या ये विपरीत है या विपरीतार्थकारी है. इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न दिस बाय हार्ट. इसमें तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है. अतिसार में स्तंभनार्थ पाठा, पाठा आदि द्रव्य. सो इसमें व्याधि बताया ना उन्होंने अतिसार, सो इट इज व्याधि विपरीता. वही विपरीता बिकॉज अतिसार हो रहा है तो उसको स्तंभन कर रहे हैं, रोकने वाले. So it is clear it is vyadhi and viparita. Now the question is whether it is ahara, aushadha or vihara. Vihar तो है नहीं, हटा दीजिए. Now two are left. One is ahara, other one is vihara. The aushadha. Patha, patha is a group of drug. ये द्रव्य का कण है. Means it's a medication. So that's why it comes under vyadhi, viparita, औषधा. वही जो पाठा की जगह मैंने घर पे मसूर बना के दिया. So it is not औषधा, it is आहार. व्याधि विपरीता आहार. सो वेरी लॉजिकली यू कैन गेट दिस. लेकिन ये तो व्याधि जो लास्ट कॉलम है, लास्ट रो है, ये तो व्याधि विपरीता एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट वन ये तो व्याधि विपरीतार्थकारी. द लास्ट लाइन इज बिट ट्रिकी, उस पर थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है. वहां पर आप देखिए वात शोते वातहरम शोतहरम च दशमूलम. सो दिस इज द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेबल. वातज शोत में वातशामक एंड शोतशामक दशमूल गणा. इसमें ये तो भी आ गया वात की वजह से, व्याधि भी आ गया शोत, एंड जो दशमूल है वात शामक भी है एंड एट द सेम टाइम शोत शामक भी है. तो ये बन गया आपका एतु व्याधि विपरीत, बिकॉज बोथ आर गेटिंग सबसेटेड, वात शामक एंड शोत शामक. सो वेरी इंपॉर्टेंट अमंग ऑल दिस इज द कॉमन क्वेश्चन. सो ये तो व्याधि विपरीत है. सिमिलरली आप देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ. इन विपरीतार्थकारी, व्हाट डू मीन बाय विपरीतार्थकारी? कुछ देर के लिए ट्रीटमेंट जो है वो डिसीज के जैसे ही चलता है. मीन्स इन जस्ट लाइक डिसीज कंटिन्यूएशन ही मान सकते हैं. फॉर सम टाइम पेशेंट विल फील इट डिफिकल्ट. जैसे छर्दी हो रहा है, उल्टी हो रहा है, एंड यू आस्क द पेशेंट टू फर्दर अंडरगो वमना. सो इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग टू स्टॉप द छर्दी, बट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इट विल हैव लॉन्ग इम्पैक्ट. कुछ देर के लिए पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, बट इट वॉज नेसेसरी फॉर यू टू फॉलो दैट मेथड. दैट इज व्हाट इज विपरीतार्थकारी. तो यहाँ पर आप देखिए ये तो व्याधि विपरीतार्थकारी, लास्ट कॉलम, लास्ट रो फर्स्ट कॉलम. अग्निना प्लुष्टे अगरवादिना लेपह. सो यहाँ पर आप देखिए अग्निना प्लुष्ट. सो अग्निना मीन्स अग्नि के द्वारा, थ्रू अग्नि, दिस इज दी हेतु. प्लुष्ट दैट इज प्लुष्ट दग्ध, दैट इज दी काइंड ऑफ बर्न. इन दिस केस डूइंग अगरवादी लेप. अगरवादी, अगरु इज वन ऑफ द उष्ण द्रव्य, लेप इज द चिकित्सा, औषध, राइट. लेप इज द चिकित्सा. और जो अगरु उष्ण द्रव्य है इट इज हेतु विपरीतार्थकारी, बिकॉज वहां पर अग्नि की वजह से ही हुआ है. द बर्न इज ड्यू टू अग्नि एंड यू आर अप्लाइंग सम अग्नि द्रव्य, अग्नि द्रव्य. सो हेतु के विपरीतार्थकारी हो गया. व्याधि भी है यहाँ पर, दग्ध हुआ है, बर्न इज ऑल्सो उष्ण इन नेचर, अगेन यू आर अप्लाइंग सम लेप विच इज उष्ण इन नेचर. सो दिस बिकम्स हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी. सो दशमूला इन केस ऑफ शोथ, वात जो शोथ इज हेतु व्याधि विपरीता. अग्निना प्लुष्ट अगरवादी लेप, अगरवादी लेप इन अग्नि प्लुष्ट इज ये तो व्याधि विपरीतार्थकारी. मद्यपानोत्ते मदात्य, मद्यपान के द्वारा ही मदात्य को ठीक करना, ये तो व्याधि विपरीतार्थकारी. क्योंकि डिसीज भी मद्यपान से ही हुआ है एंड डिसीज इज मदात्य एंड यू आर गिविंग अगेन मद्य. सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बाकी आप एक बार देख लेना, इट इज वेरी इजी. Only thing is analyze whether it is first viparita or viparitaarthakari, then analyze whether it is hetu, vyadhi or both, then the third one whether it is aushadha, ahara or vihar. That's all. It can be easily managed. जो मैंने आपको 4 बताया, they are the repeatedly asked questions. The others are very simple. You can go through that. The remaining parts I am going to cover in the tests. तो यहाँ पर जो भी मैं मिस कर रहा हूँ या डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, because everything can't be told in detail. It becomes a normal class. I am giving idea about each topic.
certain things in depth, and if I miss something or if I'm not explaining in detail, they will come in tests. The entire year up to the exam of final will have continuous tests, repeated tests, regular tests. तो हर टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. सो एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स यू विल बी फुली थरो. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस उपशेय द टेबल. तो बस आपको नॉलेज देने के लिए मैं लास्ट ये थोड़ा बहुत वोकैबुलरी बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए. जैसे मैंने बताया क्लप्ति भावा, जस्ट रिकलेक्ट विच ज्वर लक्षण इट इज, वातज ज्वर लक्षण. सो इट मीन्स नो प्रवृत्ति ऑफ मूत्र पुरुषादि. अदर मीनिंग इज this sputanum, that is nakadinam sputanum, some kind of cracks over the nails. so cracks से ही पता चल जाएगा वातज. अनमोह प्रसिद्धि ये मैंने बताया. स्व व्यापार अकरणम. अन्न रसक्यता ये भी अब मैंने बताया. सर्वरसेशु अनिच्छा, दिस इज ऑल्सो अगेन वातज ज्वरा. जस्ट रिकलेक्ट. दीर्घ सूत्रता मैंने बताया आपको. चिरेण कार्यकर्तृत्व, in which kind of disease the person will have dirgha sutra like purva rupa, it is jwara. So that's all about this particular entire context. Whatever possible question was there, I have covered. Of course, in short, मैं श्लोक वाइज नहीं किया. This is how the entrance has to be prepared. Initially, you have to just see the adhikarana, like what all is there in that chapter. Then just take the common ones and try to cover the chapter. अगर आप यूजी की तरह दोबारा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपका स्मार्ट स्टडी खत्म नहीं होगा. यू विल बी getting into the topic and you may not come out, so you will be trapped. So with this courses, if you are taking this course and if you are like regularly following, then definitely you will be one of the topmost student in the coming exams. So उसमें कोई doubt है नहीं, बस you have to follow the instructions. At the same time, wherever the concepts are weak, such concepts will be covered. मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें लॉजिक चलता है, कुछ टॉपिक्स है जहाँ पर लॉजिक नहीं चलेगा. सो वेर एवर लॉजिक कैन अप्लाई, वेर एवर द सिद्धांत कैन हेल्प यू मेक अंडरस्टैंड easily, that point of time I'll be explaining that. Now what you can do, few questions are prepared based on this lecture. You can take the test. You will have a live, you can say, experience of how the final exam will be in the software, a very well developed software. तो उसमें आपको 4 options मिलेंगे. You have to take the options, the right answer, choose it, and at the end of the test you will be getting the marks as well as the right answers and what mistakes you have done, everything you will get in that. So after that you will be able to know your status, like where you stand. So in this way we are going to cover all the chapters related to this samhita. So this section is about samhita, so all the samhita related aspects will be covered. So in other sections like chapter wise, the subject wise, like rachana kriya, subject wise जो topic है उस तरह से लिया जाएगा. So here we are going with the chapter wise samhita adhyayan, that is individual chapters as per the syllabus from NCSM. So if there is any question related to this particular topic, or if you have found any question and if you are not able to get the answer from these references, definitely you can contact me. You can text in the WhatsApp, or you can even share the voice message. I'll be able to manage the answer. Once I get the answer, I'll be able to share with you. So thank you for watching and keep joining next time.